Guys, good morning. So today we continue with Introduction to Polymer Chemistry, and today I am discussing 15.3.7, that is phenol formaldehyde and related polymers. Phenol formaldehyde and related polymers. दोनों में formaldehyde use होते हैं, दो ही compound सीखने हैं. I've discussed few questions also from the textbook. Okay, so one is phenol formaldehyde, another is melamine formaldehyde. दोनों ही thermosetting है. You know what is thermosetting, isn't it? थर्मोसेटिंग यानी एक बार आपने हीट किया, हीट में ही वो कूल हो जाता है, जो भी शेप लेना लेता है, दोबारा आप उसको कूल भी नहीं कर सकते. यू कैन नॉट गिव इट another shape also. So whatever happens when you heat first time, it melts, and then in the hot condition itself it hardens, and then you cannot again ever melt it. Okay, so that is known as thermosetting. So the first one we are learning here is bakelite. Bakelite. Yeah, this is one of the it is the oldest synthetic polymer that we know. Okay, the oldest synthetic polymer bakelite. और आजकल इतना use नहीं होता है. Of course थोड़ा बहुत है, but not that rampantly जैसे पहले होता था. Because now we have got many other alternatives. Okay, तो bakelite जो है, it is the oldest synthetic polymer and it is thermosetting. मैंने पहले ही बता दिया. तो ये कैसे बनता है देखो, दिस इज फिनॉल, यू ऑल नो इट, एंड इट हैपेंस इन 2 स्टेप्स. ओके, पहले जो उसका मोनोमर बनता है, दैट हैपेंस इन 2 स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप में फिनॉल रिएक्ट्स विद फॉर्मल्डिहाइड. Formaldehyde is HCHO, दो H है इसलिए CH2O, and it forms an ortho derivative, and then it forms an ortho para derivative, and then it forms a 2,4,6 derivative. All three are formed at the same time. This is the first step, and then this undergoes polymerization. In the second step, आप देख सकते हो OH CH2 is this one polymerizes और continuous linkage form होता है. Okay, ये जो CH2 है नेक्स्ट वाले से लिंक होता है, फिर यहाँ का CH2 नेक्स्ट वाले से लिंक होता है. सो दिस इज द कंपाउंड और दिस इज द मोनोमर विच इज एक्चुअली अंडरगोइंग पॉलीमराइजेशन. ओके, इसको हम बोलते हैं, ये जो बनता है ना, इसको हम बोलते हैं नोवोलैक. ओके, नोवोलैक इज द मोल्डिंग थर्मोसेटिंग रेसिन जो होता है, इसको आगे मोल्ड करना है, शेप देना है मेल्ट करके. ओके, सो दिस इज नोवोलैक, एंड there's a question in our textbook. Novolac is a copolymer of दो polymers है ना, phenol and formaldehyde. That is the answer. Novolac is a copolymer of phenol and formaldehyde. Okay, तो ये दो में से बनता है ये Novolac. फिर ये Novolac को in the third step, so you saw there are 2 steps. In the first step it formed multiple products of which the first one will polymerize. ये जो CH2 है ये continuously bond होते जाता है. एंड इन स्टेप 3 क्रॉस लिंकिंग होता है इसी का. अब देखो ये जो ये वाला है ना, दिस विल क्रॉस लिंक विद द नेक्स्ट मॉलिक्यूल एंड दिस इज नोन एज बेकेलाइट. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू राइट. दिस इज ऑल 2,4,6 पोर्शन में CH2 है, वहाँ लिंकिंग होता है, और फिर ये स्ट्रेट लाइन में है, नीचे भी एक स्ट्रेट लाइन में उससे क्रॉस लिंक होता है, एंड सो ऑन. सो इट फॉर्म्स बेकेलाइट. प्लीज राइट एंड सी वंस, सो दैट आपको एग्जाम में अगर पूछा तो आप लिख सकेंगे, और आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं. 2,4,6 में लिखना है, उसी को रिपीट करना है. ओके, एंड देन क्रॉस लिंक भी करना है, नीचे भी एक लाइन फॉर्म करना है ऑफ द पॉलीमर. दिस इज बेकेलाइट. नाउ लेट अस सी इसका क्या. Okay, first of all there's a question. Write the name and formula of the raw material from which bakelite is made. तो already हमने देख लिया, that is phenol and formaldehyde, and you know the name. phenol का formula भी मालूम है, and formaldehyde का it is CH2O. Okay, these are the 2 raw materials from which bakelite is made. Okay, next is write reactions involved in the formation of bakelite. टेफ्लॉन तो हमने पहले देख लिया. सो हियर यू हैव टू सी द रिएक्शंस इन्वॉल्वड इन द फॉर्मेशन ऑफ बेकेलाइट. तो आप ऑलरेडी हमने देख लिया, पहले 2 स्टेप करने के बाद नोवोलैक बनता है, फिर वो नोवोलैक से बेकेलाइट बनता है थर्ड स्टेप में. ओके, नाउ लेट अस सी इससे बनता क्या है. ये देखो, ये टेलीफोन का इंस्ट्रूमेंट बनता है बेकेलाइट से. ओके, एंड देन यू हैव किचन वेयर, मतलब ये पूरा नहीं, अंदर तो आपको पता है टेफ्लॉन होता है कोटिंग. ये जो हैंडल्स है ना, मैंने उस लेक्चर में बोला था हैंडल्स किससे बनता है, तो हैंडल्स बेकेलाइट से बनता है. ओके, तो किचन वेयर आपको हैंडल वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, यू सिंपली राइट किचन वेयर इज मेड फ्रॉम बेकेलाइट.
एंड ऑल्सो ये जो है ना, ये थोड़ा ग्लासी टाइप होता है. इफ यू हैव सीन, थोड़ा ग्लॉसी एंड प्लास्टिक, नॉट प्लास्टिक एक्चुअली, थोड़ा हार्ड होता है, ग्लासी टाइप होता है. दिस इज एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर विच इज यूज्ड. ओके, सो ये सब आजकल बहुत कम यूज में आता है. प्रीवियसली almost everywhere this electric insulators were used. Okay, these are some of the uses. ये देखकर ही आप समझ सकते हैं कि इसके properties क्या है. The properties are, it has high tensile strength, it is very strong, and then it is insoluble, पिघलेगा नहीं, and पानी में dissolve भी नहीं होगा. It is insoluble and infusible, melt नहीं होता है. So इसीलिए you are using in insulators because it is infusible. It is insoluble also. Okay, so that's it. We are done with Bakelite. Just वो proper reaction एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेना. Novolac is its copolymer of phenol and formaldehyde. And this is used, as I already told you, as a substitute for glass. ठीक है. नेक्स्ट जो पढ़ना है वो है मेलामिन फॉर्माल्डिहाइड रेसिन. इसमें भी मेलामिन ही है, थर्मोसेटिंग, सॉरी इसमें भी फॉर्माल्डिहाइड ही है. आई एम सॉरी, इट इज फॉर्माल्डिहाइड ही है, सिर्फ फिनॉल की जगह में यहाँ पे मेलामिन है. एंड देन इट इज थर्मोसेटिंग अगेन. ओके, अब ये आपको पता है, ये जो टेबल का टॉप है, हाँ, इसको हम फॉर्मिका बोलते हैं, या हम लोग रेगुलरली घर में पहले सनमाइका बोलते थे. सो फॉर्माइका या सनमाइका जो टेबल टॉप्स है, ये सब मेलामिन फॉर्माल्डिहाइड रेसिन से बनता है. ओके, मेलामिन फॉर्माल्डिहाइड रेसिन. एंड इट ऑल्सो इज यूज टू मेक डिनर वेयर. है तो आपको घर पे पता है ना, अनब्रेकेबल जो बनता है. I had explained this when we had learned thermosetting also. ये एक ही बार बनता है, हार्ड है, टफ है, कलर दे सकते हैं, हीट रेसिस्टेंट है, मॉइस्चर रेसिस्टेंट है, पर दोबारा मेल्ट होके वो शेप नहीं ले सकेगा. ओके, सो इट इज अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. Okay, and it is heat resistant as I told you, and it is also moisture resistant. यही सब properties की वजह से उसके वो uses है, क्योंकि टेबल टॉप पे वगैरह वो भीग के खराब नहीं होता. You can just wipe it off. Okay, it is undergoing condensation, polymerization. अभी condensation आपको पता है क्या है? What is condensation? It will lose a small molecule. This is melamine. मेलामिन क्या है? बेंजीन रिंग जैसा ही है, ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, लेकिन एवरी ऑल्टरनेट पोजीशन यू हैव नाइट्रोजन इंस्टेड ऑफ कार्बन. जहां कार्बन है उस पे अटैच्ड है NH2. ओके, सो ऑल्टरनेट कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन पे NH2 है, हर तीनों कार्बन पे NH2 है, एंड फॉर्माल्डिहाइड. सो दिस इज अंडरगोइंग पॉलीमराइजेशन. अब देख सकते हैं ये NH और ये जो H है दूसरा, वो इसके साथ जाके CH2OH, NHCH2OH, NHCH2OH, NHCH2OH in all three positions. And then it loses a molecule of water and it undergoes polymerization. Okay, so NHCH2, okay, यहाँ से एक OH निकल जाएगा और एक H दूसरे में से. So NCH2, CH2, and then it can even form cross link. नीचे की और दूसरा मॉलिक्यूल से भी वो लेयर बना सकता है. So cross link मेलामिन फॉर्माल्डिहाइड रेसिन बन गया. That's it, as simple as that. Okay, so it is a cross link, क्योंकि ये अभी यहाँ एक ही लाइन दिखा है, लेकिन यहाँ से वो नीचे की ओर फिर लिंकेज कर सकता है. So it is a cross link मेलामिन फॉर्माल्डिहाइड रेसिन. यूसेस तो आपने देख लिया, प्रॉपर्टीज भी आपने देख लिया. Because if you would like to see the properties are, it is heat resistant, it is moisture resistant. इसीलिए तो हम टेबल्स पे रखते हैं कि फटाफट पोंछ के साफ कर सकते हैं. And you also know it is used in dinnerware, and melamine formaldehyde resin is used in making formica tabletops. Okay, so that's it. And it is undergoing condensation, polymerization. ये याद रखो, molecule of water is lost in this process. Okay, so the question here is, classify the following polymers as straight chain, branch chain, cross link polymer. अभी ये जो है, यहाँ आपको दिख रहा है branch है. It will be a straight chain but with a branch. This is also having a branch. So both are branch chain polymers. ये तो ऊपर एक लाइन है, नीचे एक लाइन है और क्रॉस लिंक है. So this is a cross link polymer. Okay, that's how you classify it. हाँ, next match the following. ये easy है. टेफ्लॉन किससे बनता है? CF2, CF2, याद है ना? This is a monomer, CF2 double bond CF2, Teflon, tetrafluoroethane. Okay, then you have PVC, polyvinyl chloride. Vinyl chloride क्या होता है? CH2 double bond CH, Cl. विनाइल क्लोराइड, उससे फिर पॉलीमराइजेशन से पॉलीविनाइल क्लोराइड. देन पॉलीएस्टर, पॉलीएस्टर हम पता है टेरिलीन. इट इज मेड यूजिंग डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज टेरिफ्थैलिक एसिड, एंड
इथिलीन ग्लाइकॉल. सो पॉलीएस्टर जो होता है ना, जरूरी नहीं कि टेरिफ्थैलिक, कोई भी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और कोई भी पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल से काम चल जाएगा. ओके. And then polythene, ethene है ना, ethene is CH2 double bond CH2, that is a monomer. And bakelite, we have seen just now, phenol and formaldehyde. Okay. The next is classify the following polymers as natural and synthetic polymers. I am expecting these kind of questions this year. Cellulose is natural, polystyrene is synthetic, pterylene is synthetic, starch is natural, protein is natural, silicones is natural, Orlon is synthetic, and phenol formaldehyde resins are synthetic. Okay. Thank you very much. All the best.